आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं बड़े खुश हूँ कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। इट्स अ जॉय फॉर मी टू बी प्रेजेंट हियर दिस इवनिंग to present my message, and I know you all will be blessed by this message that I have for you this evening. So before we go into our message, let's pray. Father in heaven, once again we are so privileged that you have given us the privilege that I could go on my YouTube channel, present a message. I know it takes time for me to do it, but with your help and help of the Holy Spirit, I'm able to present this message. I know you're going to be with me, help me to speak the word that I need to speak. Forgive my sins and shortcomings as I am a sinner, a great sinner. I humbly want you to bless me as I speak this evening so that my viewers will be happy. They will rejoice and share this message with the others. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने कहा कि मेरा संदेश आज फिर अलग है, और आज हम जाएंगे रोमियो की पुस्तक में, और वहां पे हम देखेंगे पहले अध्याय की 18वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब आप इससे समझ गए होंगे कि व्हाट आई वांट टू स्पीक। आई वांट टू स्पीक अबाउट हाउ वी मेक गॉड एंग्री बाय आवर डीड्स। हम अपने कामों के द्वारा किस तरीके से परमेश्वर को नाराज करते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, और हम ये देखेंगे कि यहाँ पे द रॉथ ऑफ गॉड रिवील्ड क्यों, आ, परमेश्वर का जो वचन है जो हमें बता रहा है, ले जा रहा है हमें परमेश्वर की ओर, हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमसे क्यों गुस्सा है। मैन इज ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स, and no man is perfect. Romans 6:23 says, all men have sinned and come short of the glory of God. सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से मुक्त है। हम देख रहे हैं कि सबने पाप किया है। We all keep making mistakes, and we come to the extent where we don't realize what have we done. We don't see whether God is going to be upset or not. We make mistakes, we think nobody is going to look into it. हम गलतियां करते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोई भी हमें नहीं देख रहा। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है। और जब हम देखते हैं कि जब जब हम ये सोचें कि परमेश्वर हमें देख रहा है, तो हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाने में अ, अपना हाथ हम जो है कोशिश करेंगे कि परमेश्वर गुस्सा ना हो हमारे कामों से, बल्कि हम अपना पछतावा करें और परमेश्वर से माफी मांगे। वी नीड टू रिपेंट एंड कम टू द throne of God so that we will ask forgiveness for our sins, each mistake that we make. Now we have seen that Israelites were already stubborn-headed people, and coming to the present generation, we have the same kind of people living in. आज भी वही इजराइट्स हैं। वो जमाना नहीं है, लेकिन आज का जो जमाना है, लोग अक्सर क्रोधित हो जाते हैं। Romans 1:18 says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of those who by their wickedness suppress the truth. जो सच्चाई को दबाए रखते हैं, अधर्म को जो है अधर्म से दबाए रखते हैं सत्य को। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। ट्रूथ इज वेरी बिटर। सच्चाई जो है वो बहुत ही कड़वी होती है। एंड इफ वी कीप ऑन टेलिंग अ लाई, if we tell one lie, we have to tell another 10 more lies. अगर हम एक झूठ बोल रहे हैं तो उसके साथ हमें कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। Ultimately we forget God is looking at us. God knows our mistakes. We know King David was trying to hide his sin, the adultery with Bathsheba. Of course he got married to her, and but then how long can you hide your sin? कितना देर तक आप अपने पाप को छुपा सकते हो?
Ultimately, God had to bring Nathan, prophet, to tell him, King David, the sin that he had committed. He committed adultery with Bathsheba, got her husband also killed. So then God had to tell him, reach out to him, to let him know the sin that he was hiding. And when he comes to know that his sin is already out, God knows about his sin, he was confessing all the time. उसने पछतावा किया, गिड़गड़ाया, अपने पापों की क्षमा मांगी। और हम देखते हैं भजन संहिता, ये उसके गिड़गड़ाहट, उसका रोना, उसका पछतावा, उसका धन्यवाद देना, उसका भजन गाना, ये सब बताता है कि दाऊद कितना पछताया, पश्चाताप किया। He repented really. The truth was out, and God was no more angry with him. God said, David is the man after my own heart. ये दाऊद जो है मेरे दिल के बिल्कुल करीब है। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर को सच्चे लोग पसंद है, उसको झूठे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। He doesn't like people who tell truth, who tell lies. He loves people who, in spite of the mistakes they have committed, they must be outrightly telling the truth. यहाँ पे रोमन्स तीसरा अध्याय के 10 से 12 में लिखा हुआ है, शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या है? परमेश्वर का वचन। कह रहा शास्त्र कहता है कोई भी धर्मी नहीं। इसका मतलब सबने पाप किया है, सिर्फ एक भी धर्मी नहीं है, सब पापी है। कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं। सब अपनी समझ का फायदा ले रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा अक्लमंद है, मगर ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को खोजता। आजकल जो है सब अपने अपने उसमें जा रहे हैं, मौज मस्ती में जाते हैं। वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। सब भटक गए, वे सभी निकम्मे बन गए हैं। व्हेन यू डोंट talk to God, when you don't pray to God, when you don't read the word of God, we are going astray from God. हम परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, हम निकम्मे बन गए हैं। वी आर फूल्स, गोइंग अवे फ्रॉम गॉड। साथ साथ सबके सब, कोई भी यहाँ पे दया तो दिखाता नहीं, एक भी नहीं। हम देखते हैं अगर कोई सड़क पे गिर जाए, दूसरा आदमी उसको देख लेगा, लेकिन उसको उठाने की कोशिश नहीं करेगा, दया नहीं दिखाएगा। आजकल जिस जमाने में हम रह रहे हैं, nobody wants to show his compassion and sympathy for the fellow human being. Now it says Romans 3:10-11, as it is written, there is none righteous, no, not one. Nobody is righteous. Everybody is committed some kind or the errors in their life. There is none that understand that. There is none that seeketh after God. Nobody is looking after God. We say, seek ye first the kingdom of God. आजकल तो कोई परमेश्वर के राज्य की खोज ही नहीं कर रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं मांग रहे हैं। परमेश्वर के वचन को चर्च में भी नहीं ले जाना मांगते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन हम हाथ में लेके जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। ये शायद उनको भारी लगता है, इसलिए चर्च में जो है वो खाली हाथ चले जाते हैं। वो सोचते मोबाइल में जो बाइबल है वो काफी है, बाइबल ले जाके क्या करेंगे। Nobody is seeking for God's kingdom. They are all gone out of the way. सब परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। They are together become unprofitable. उनका कोई भी लाभ नहीं है। जो परमेश्वर के रास्ते से भटक जाता है, उसका कोई भी लाभ नहीं है, उसकी हानि है। उसने अपने आप को ऑलरेडी उस रास्ते पर मोड़ दिया जहां से वो वापस नहीं आ सकता। हम देखते हैं कि जो प्रोडिगल सन था, उसने बहुत इंजॉय किया, लेकिन जब उसको काम नहीं मिलता और सुअरों का उसने काम लिया, और वो सोचता मेरे पिता के घर में तो बहुत से नौकर इससे कई गुना ज्यादा अच्छा खाना खाते, मैंने जो पहन रखा है, मेरी हालत क्या है, मेरे नौकरों की हालत मेरे से ज्यादा अच्छी है। He repented and goes to his father.
हमारे अंदर वो भावना क्यों नहीं है? वाई कांट वी रिपेंट एंड गो एंड सीक द थ्रोन ऑफ गॉड? Why can't we seek the kingdom of God by reading the word of God daily, by praying to God, staying away from the worldly pleasure? दुनिया की मौज मस्ती से हमें अपने आप को दूर करना है अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है. Otherwise, God's wrath is going to be terrible. He is very kind, very compassionate, very patient. उसमें धीरज है और वो हमें समय दे रहा है. He is giving us time to repent and go to him. He wants us to go and seek him. But what are we doing? हम कर क्या रहे हैं? परमेश्वर के राज्य को क्यों नहीं खोज कर रहे हैं? क्यों हम सोचते हैं कि आज हमारे पास जो समय है ये वापस नहीं आएगा, आज हम चलो मौज मस्ती करते हैं, चलो हम क्लब्स में जाते हैं, चलो हम मूवी देखने जाते हैं, क्योंकि ये आज अगर मूवी मैंने नहीं देखी तो मुझे बाद में देखने में मजा नहीं आएगा जब मेरे दोस्त कहानी बताएंगे. What are we doing? Are we? God has told us, when He created the world, उस टाइम बोला, be fruitful and multiply and fill the earth. परमेश्वर के में बने रहो और इस पृथ्वी को भर दो, अच्छे कामों से, बुरे कामों से नहीं. Good deeds, not with bad deeds. This is what man is supposed to be doing, and man is not at all doing, and making the reason for God to cause him to have anger coming up. God gets angry. He gives him time to the sinner. वो पापी को मौका देता है कि ये पछतावा करे. जब वो पछतावा नहीं करता, परमेश्वर का जो गुस्सा है उसके पर नाजिल हो जाता है. तो हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं. क्या हम परमेश्वर को मानना मांग रहे हैं? यहाँ पे इफिसियों 2:1-3 में लिखा हुआ है, स्टबर्न नेचर ऑफ मैन. हम देखते हैं इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर आए बहुत ज्यादा जिद्दी थे और वो जो है अपनी मनमानी करना मांगते थे. बात बात पे वो गुस्सा हो जाते थे, हठी लोग थे. यहाँ पे लिखा हुआ है, एज फॉर यू, यू वर डेड इन ट्रांसग्रेशंस, अपने पापों में आप मर गए, एंड सिंस इन विच यू यूज्ड टू लिव व्हेन यू फॉलोड द वेज ऑफ द वर्ल्ड. जब आपने दुनिया के कामों में अपना समय बिताया, दुनिया का जो राजा है शैतान, उसके कामों में आप लग गए. And the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. ये जो आज्ञा का उल्लंघन करना, शैतान जब ये बागे ईदन में आता है तो उसने हवा को जो है आज्ञा का उल्लंघन करने की ओर उसने उसको ले गया, और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया उसने. यहाँ पे वही हठी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, जो इस दुनिया का जो रूलर है शैतान, उसके कामों में लगे हुए हैं. आप देखते हैं कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है, मारपीट, मृत्यु, रेप, क्या चीज है हमारे आसपास, रॉबरी, प्रॉपर्टी, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं. ये शैतान ऐसे काम करा रहा है, अब वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है. He says, we are becoming disobedient. All of us, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were nature, deserving of wrath. जब हम परमेश्वर के कामों में नहीं जाते, मन लगाते, तो हमने परमेश्वर को क्रोधित किया. एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे. Now also people are dead in their sins because they are not spiritual minded. They are getting away from God. जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पे चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी है. आत्मिक शक्ति
शैतान के पास वो आत्मिक शक्तियां हैं जिससे वो हर इंसान को बरगला देता है और उनको पाप की ओर धकेलता है। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। अगर हम देखें अब्राहम, ही केम आउट फ्रॉम पेगनिज्म, ही नेवर वेंट बैक देयर। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो बुत परस्ती में वापस नहीं गया, बुत परस्ती से परमेश्वर निकाल के लाया। हम बुत परस्ती में जीते हैं, बुत परस्ती से बाहर नहीं आते थे। जो भी चीज हम अपनी मर्जी से करना मांगते हैं वही हमारे लिए बुत परस्ती बन जाती है। टेक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। आप देखें, हर एक के पास मोबाइल है, और मोबाइल के अलावा ऐसा लगता है लोगों को हमारा जीवन जो अधूरा है। वो मोबाइल जो है उनका क्या बन जाता है, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। वही बुत परस्ती बन जाती है। जिस चीज को हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत दें वो ही हमें बुत परस्ती की ओर ले जाती है। एनीथिंग वी गिव मोर इम्पोर्टेंस, टेक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मोबाइल, दैट मीन्स we are heading towards immorality. We are heading towards worldly things. मोबाइल में बहुत कुछ है, अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन हम हमेशा बुराई की ओर भागते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, एक समय हम भी उन्हीं के बीच जीते थे और अपनी पापपूर्ण प्रकृति की भौतिक इच्छाओं को तृप्त करते हुए अपने हृदय और पापपूर्ण प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसार के दूसरे लोगों के समान परमेश्वर के क्रोध के पात्र हो गए। जब हम मसीह के रास्ते पे आते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि हम पाप में पड़े हुए थे और परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया, और हम उस गंदगी से, उस पाप से हम बाहर आ गए, और हमने परमेश्वर का जो क्रोध जो था हमारे ऊपर उसको शांत किया। जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, परमेश्वर हमारे से गुस्सा नहीं होता फिर। God is not angry when we repent, when we realize our mistakes, and we turn back from our evil deeds. Then God is happy with us. But if we continue to live in sin, we make God angry. And this is what is very important for us, at what we are supposed to be doing. उन लोगों को जो सत्य की अधर्म से दबाते हैं, बुरे कर्मों, हर बुराई पर स्वर्ग से परमेश्वर का कोप प्रकट होगा। और ऐसा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के बारे में वे पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन्हें बताया है। जब से संसार की रचना हुई उसकी अदृश्य विशेषताएं, अनंत शक्ति परमेश्वर का साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती हैं जो परमेश्वर ने रची। इसलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं। परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय के पहले आयत में, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, पृथ्वी और आकाश की रचना की। ओके, वो हम जब ऊपर देखते हैं हम देख रहे हैं कि सूरज किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। बर्ड्स किसने बनाई, परमेश्वर ने बनाई। ये परमेश्वर की रचना जो है हमें परमेश्वर की बनाई हुई चीजों में मिलती है। God's revelation to man. Okay. Because that which may be known of God is manifest in them, for God had showed it to them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even its eternal power and Godhead, so that they are without excuse. हमारे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर ने हमारी रचना की है। उसने सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उसने आदमी की भी रचना की, उसने हवा की भी रचना की है। तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं है टू से दैट वी डोंट नो गॉड्स वर्क। गॉड इज रिवील्ड इन नेचर। प्रकृति के द्वारा हम परमेश्वर को उसमें देख सकते हैं, उसकी रचना। और हमारे पास अगर हम कहें कि ये परमेश्वर ने बनाया है और हम उसको भूल जाएं
तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाने में बहुत ज्यादा जल्दी कर देते हैं। हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखें, हेलन हेलन केलर जो थी, एक यंग लेडी थी, और ये बचपन से ही अ, इसको एक डिजीज हो गई थी। वो बीमारी हुई, और उस बीमारी की वजह से उस बीमारी ने उसको अंधा भी कर दिया, गूंगा भी कर दिया, और डेफ भी बना दिया। ओके, सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, और देख भी नहीं सकती थी। ये लड़की बचपन से ही ऐसे रही। इसकी जो टीचर थी उसका नाम था एन सलिवन, और वो ने उसने इसके साथ बहुत मेहनत करी। किसी बच्चे के साथ जिसको बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, और जो गूंगा है, जब हम इसको देखते हैं कि वो टीचर ने कितनी मेहनत की होगी हेलन केलर के साथ, और उसने हिम्मत नहीं हारी। हेलन लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू टच। छू छू के उसने जो है लिखना पढ़ना सीखा, एंड इवन लर्न टू टॉक, और उसी के द्वारा, उसने टच के द्वारा ही उसने बोलना भी सीखा। When Anne Sullivan tried to tell Helen Keller about God, the girl's response was that she already knew about him, she just didn't know his name. जब उसकी टीचर ने, एन ने बोला, क्या तुम परमेश्वर के बारे में जानती हो? उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ परमेश्वर के बारे में, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम। बहुत छोटी लड़की के रूप में हेलन केलर एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसने उसे अंधा, बहरा और गूंगा बना दिया। एनी सलिवन नामक एक महिला ने हेलन को संवाद करने में मदद करने के लिए अथक और निस्वार्थ रूप से काम किया। उसने बहुत मेहनत करी, उसका कोई लालच नहीं था। एक अंधी लड़की, एक बहरी लड़की, एक गूंगी लड़की को पढ़ाना कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसने जो है निस्वार्थ सेवा की उसकी, हेलन की। आखिरकार हेलन ने स्पर्श के माध्यम से संवाद करना सीखा, छूकर, और उसने बात करना भी सीखा छूकर। और उसने जो है एनी सलिवन ने हेलन केलर को भगवान के बारे में बताने की कोशिश करी। तो लड़की ने जवाब दिया कि वह पहले से ही उनके बारे में जानती थी, वह सिर्फ उनका नाम नहीं जानती। परमेश्वर के बारे में उसने सुना था, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम था। ये लड़की जो है, हेलन केलर जो है, इसने बहुत किताबें लिखी हैं ब्रेल में। जो इसको ये लिखती थी, अंधी लड़की थी, और इसके जो था हाथ से टच करके, स्पर्श करके जो है, ये रीडिंग भी करती थी, पढ़ती भी थी, और लिखती भी थी। किताबें भी इसने लिखी हैं अंधे, गूंगे और बहरों के लिए। और इसने जो है बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है अपनी एजुकेशन पूरी करी। एक ऐसी औरत, शी नेवर गेव अप, her teacher never gave up. She continued to work with her. And Helen also kept working hard to reach her goal. She could not see, she could not hear, she could not talk. But her teacher made her to write, made her to speak through touch, and made her to see things by touching the things. This is how Helen Keller was able to work and to know how God was working in her life. परमेश्वर किस तरीके से इस अंधी, गूंगी, बहरी लड़की के मन में काम कर रहा था, क्योंकि उसके मन में लगन थी। परमेश्वर उससे बहुत खुश था कि उसने वो सब सीखा जो परमेश्वर चाहता था। आज भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि हिम्मत नहीं हारते। There are people like Helen Keller who never give up in life. They work hard. They never let others know that they are handicapped, but they continue working, and God helps them extra by reaching out to their goal. हम देखते हैं यहाँ पे आकाश
परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश का मेहराब उसके हस्त कार्य को प्रकट करता है। द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द स्काई अबव प्रोक्लेम्स हिज हैंडीवर्क। परमेश्वर का काम को अगर हमने देखना है तो ऊपर आकाश में देखेंगे, हम सितारे देखेंगे जो रात में चमकते हैं, चंद्रमा देखेंगे जो रात में आता है, सूरज देखेंगे जो दिन में रहता है, बर्ड्स जो उड़ते हैं उनको देखते हैं, जानवर जो नीचे रेंगते हैं उनको देखते हैं, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको हम उनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। और हमारे जो प्रकृति है, जो नदियां बह रही हैं, वो परमेश्वर की बनाई हुई है। ये सब में परमेश्वर ने प्रकट हुआ है। जब हम नदी के पास खड़े हो जाएं और उसका पानी बहना शुरू होता है, इट हैज अ वेरी रिदमिक साउंड, द फ्लो ऑफ द रिवर, एंड यू फील सो यू आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ दैट flowing water. That is the creation of God. That is how God can be seen in nature through these things. When we look at here, because that when they knew God, they glorified him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Romans 1:21। जब हम परमेश्वर को रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार करते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यू नो, पीपल डिड नॉट प्रेज गॉड, पीपल डिड नॉट थैंक गॉड, their minds became dark, their imaginations were vain, their thinking were useless because God was not with them. When a man rejects God, God is not going to be with him. Even though Jesus, before going, he said, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें त्यागूंगा ना, नहीं ना छोड़ूंगा। लेकिन आदमी जो है परमेश्वर को नकार देता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर की उन्होंने बढ़ाई नहीं करी, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। We need to say thank you to God every moment of our life. We need to praise God every moment of our life. Then God gives us wisdom. Then our life is worthy of living for God. Our life will not be in vain. We need to come to the throne of God. We don't need to reject God. हमें परमेश्वर को जो है, हमें क्या करना है, उसको हमें नकारना नहीं है। हम देखते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? मनुष्य वो कोशिश करता है कि मैं जगत को प्राप्त कर लूं, लेकिन हम देखते हैं कि जो अमीर आदमी जो था, जो यीशु मसीह के पास आया था, उसको अनंत जीवन तो चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा? उसने जब यीशु मसीह ने कहा अपने क्रूस उठा, जो कुछ तेरे पास है उसको बेच के मेरे पीछे हो ले। वो अमीर आदमी के पास धन दौलत बहुत थी, वो अनंत जीवन भी मांग रहा था, वो जगत को प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसने अपने प्राण की हानि उठाई, क्योंकि अनंत जीवन उससे ले लिया गया। परमेश्वर वो वहां से सर नीचे करके चला जाता है, उसने अनंत जीवन हमेशा के लिए खो दिया। यही वो बता रही आयत हमें कि अगर हम पूरे जगत को प्राप्त करें और प्राण की हानि उठाएं तो उससे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? व्हाट कैन आई डू फॉर गॉड? इफ आई इफ आई लूज द वर्ल्ड, इफ आई गेन द वर्ल्ड, एंड इफ आई फॉलो गॉड आई विल गेन द वर्ल्ड। अगर मैं परमेश्वर के रास्ते पे चलूंगी तो मुझे जगत को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। आई नीड टू
get eternal life rather than the worldly things. This is what we need to be doing, and God is always by our side. Professing themselves to be wise, they became fools. जब एक इंसान अपने आप को सोचता कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, उसी टाइम वो बुद्धि क्या होता है, बुद्धिहीन हो जाता है। वो निकम्मा, बेवकूफ, और उसमें बुद्धि नहीं रहती। वे अपने आप को बुद्धिमान मानकर मूर्ख बन गए। हम क्यों अपने आप को बुद्धिमान सोचते हैं? Why don't we take ask for wisdom from God? When we ask wisdom from God, people are not going to call us fools. When we try to show, oh, I know everything, I don't need anybody's help, that I becomes the problem. जो मैं है वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम उससे, मैं तो, मेरे से अलावा तो कोई बुद्धिमान है ही नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, तभी हम मूर्ख नहीं बनेंगे। हमें परमेश्वर बुद्धि देगा और हम उसके रास्ते पे चल सकते हैं। Romans 1:23 says, and change the glory of the world, glory of the uncorruptible God into an image made like the corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Okay, this is idolatry in the 21st century. और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। What is man doing? Going away from the living God and worshipping different deities which they have made. Those deities which they have created to make them feel satisfied. वो दूसरी चीजों को जब वो उनको अपना भगवान बना लेते हैं, तो मनुष्य नाशवान हो जाता है। क्योंकि ये चीजें जो हैं, जरूरी बात नहीं कि जो पूजा ही है, उसके अलावा मोबाइल भी आ जाता है, और अगर हम टीवी देख रहे हैं ज्यादा देर तक, वो भी एक तरह से पूजा हो जाती है। कोई भी चीज जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत दें, वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। एनीथिंग विच वी गिव मोर इम्पोर्टेंस देन गॉड, then we are going away from God. And therefore, there we see everywhere there is what? Crime, there is wickedness all around us. But God is protecting his people. He has promised that he is not going to leave nor forsake us. And therefore, we need to come back to the throne of God. We need to repent. हमें पश्चाताप करना है परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। हमें वचन को मानना है, उसको पढ़ना है, उसको दूसरे लोगों में बताना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। I'll come back soon with my next video. God bless you all.